स्कॉलर्स प्राइड स्कूल में विज्ञान की विशाल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी का विशेष लक्ष्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। आइए एक नजर डालते हैं छात्रों की विशेष प्रदर्शनी पे। Hello everyone, this is Mehak Bhardwaj from Scholars Pride. I am a mass media student. Here I am going to give you a short tour of our mass media lab. This is a mass media lab and here we learn different kinds of productions. As you can see, this is the print production over here. We have also taken out a newsletter of our school. Now after that we are having editing desk. We have taken out a news bulletin of our school. Then this is the wall. Showing two different time zones of the old movies versus the new movies. Then moving towards this wall, this is the photo gallery and these photos have been clicked by the students of class 12 and we have given them a caption. Thank you. Hello sir, my name is Himanshi and I am studying in Scholars Pride School and I read in 12th class and this is a tie and dye club and we made in our home. We made in our homes and these are small children's made and this is digital printing. ये tie and dye और जो ड्रेस है वो भी हमने बनाई थी। तो ये किस चीज़ से बनाई थी मैम? सर ये क्लोथ से बनाई है हमने घर पे। आपने कहाँ सीखा था? सर ये मैम ने बताया था और हमने फिर ट्राई करा तो ये बन गया। कितने साल हो गए आपको सीखे हुए? सर मतलब ये 11th और 12th के लिए खाली ये सिखाते हैं मैम। आपका नाम है? My name is Dr. Deepika Yadav. मैम आज एग्जीबिशन मतलब लगाया है, मतलब क्या एग्जीबिशन था और क्या था उसका सर आज एक्चुअली हमारे जो एड्यू एक्सपो था वो उसमें काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स थे. नॉट ओनली साइंस, मास मीडिया इज़ ऑल्सो देयर, फैशन डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो देयर, बट माई कोर एरिया इज़ साइंस. तो उनके बारे में बताना चाहूँगी. बच्चों ने सिंस क्लास सिंस फॉर 1 मंथ क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th तक सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की फॉर 1 मंथ एंड दे हैड प्रिपेयर्ड इनोवेटिव आइडियाज़. कई आइडियाज़ ऐसे थे जो हम स्टीरियोटिपिक ओके वी यूज टू सर्च ऑन यूट्यूब, बट कई लाइक हाइड्रोलिक क्रेन्स इज़ देयर, रडार सिस्टम इज़ देयर, देन डैम सिस्टम इज़ देयर, जिसमें बच्चों ने प्रेजेंट, जैसे इन केस ऑफ डैम सिस्टम, यमुना की जो अभी जो कंडीशन आई थी इन दिल्ली, दैट ऑल्सो दे हैव डिस्कस्ड. हाइड्रोपोनिक इज़ सच अ गुड कंसेप्ट. उसमें आप ये देखिए कि द लैंड एरिया इज़ सो लेस and like we are having rising the prices of tomatoes, so definitely we are going to switch to some other agriculture implements. तो वहाँ पे मैंने देखा बच्चों ने हाइड्रोपोनिक्स को इतना अच्छा यूज़ किया. not only by using the added nutrients but we can use our household sewage water also. This way the water get filtered and also we get good quality of water for the plants, that without soil. Then radar system is there. We can have the detection system, means like in every you can say educational institute, research institute or malls, we definitely want to scan for certain things and we have the detection system. Here radar system is working on the same theme, and other than this the students have made like volcanic eruption which is earlier stereotypic, but here they make smoke bomb. तो ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज़ what we used to teach them, they had applied that and they had added a little more, bit more of that knowledge. So I personally am very glad and proud of my students. and साइंस एग्जीबिशन में मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है मतलब वो क्या चीज़ रही? सर मेन तो देखो ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरी टीचर इज सेइंग इक्वली फॉर एवरीथिंग. इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइकिंग ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट बिकॉज सर सबका क्राइटेरिया डिफरेंट था. बट द मेन थिंग विच अट्रैक्टेड आवर जजेस ऑल्सो, लाइक चारू मैम शी डिस्कस्ड विद मी, वन इज़ द रडार system. Second is the paper out of that sugarcane waste, because there we are using that biodegradable resources. Then third is the robot system, means we have robot as a catering system that is easing our work. And one more thing is there hydraulic crane, that also liked by ma'am. So these 4 are the core areas. जो भी सारी एक्टिविटी करी हैं हाँ ये जी. इसमें अध्यापक का मेन रोल रहा है या फिर बच्चों ने बनाया है इसको? सर अध्यापक ने तो सिर्फ उनको मार्गदर्शन किया था. वी आर जस्ट गाइडेड देम, बट द आइडियाज़ आर देयर. वी आर जस्ट ट्रिमिंग देयर आइडियाज़ एंड आई कैन से 90% कंट्रीब्यूशन इज़ बाय द स्टूडेंट्स. वी ओनली गाइडेड देम, वी ओनली हेल्प देम. बट आप आइडियाज़ अगर देखेंगे, आपने अभी आउटपुट ओनली देखा है. जो रॉ आइडियाज़ वो लेके आए थे कि हमने रास्ते में चलते मैम कुछ ऐसा देखा था, फिर ये आइडिया आया, फिर ये हमने कहीं से सुना, तो दैट हाइब्रिड दे मेड आउट ऑफ दिस.
this is very much means significant part of contribution is towards the students. तो क्या इस एग्जीबिशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ ऐसा रखा कि हाँ भाई ये बच्चे ने मतलब रोबोट बनाया तो हाँ ये जी। फर्स्ट है सेकंड है? नहीं सर, ये चीज़ें थी कि हमने देखने की कोशिश की, बट एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, हर एक बच्चा अपनी ऑन इट दे ओन दे आर फर्स्ट, मीन्स एवरी आइडिया इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, नो कंपैरिजन, लाइक 5 फिंगर्स आर डिफरेंट इन वन हैंड. तो हमने सभी बच्चों को देखा और हमने ये सोचा कि हम सभी को अप्रिशिएट करेंगे एंड द रिवॉर्ड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव इज इक्वल. बताया कि इसमें आपने 90 मतलब स्टूडेंट थे टोटल, तो 90 में नहीं, से मतलब स्टूडेंट कौन से 36 मॉडल इज देयर. कंट्रीब्यूशन इज 90% बाय द स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट बाय द स्टूडेंट. सर क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th इन केस ऑफ साइंस एग्जीबिशन आई एम टॉकिंग. हाँ एग्जीबिशन में बच्चे ही आए थे या फिर बाहर के भी कुछ पेरेंट्स आए थे? नहीं सर, टोटली हमारे स्टूडेंट्स का ही था, उनके पेरेंट्स आए थे, अदर पेरेंट्स आर देयर, बट मेन हमारे मतलब स्कूल के ही बच्चे थे. उन्हें कहा हाँ जी. स्कॉलर स्प्राइट छोटी सी उम्र में बच्चों को इतने बड़े बड़े मॉडल दे रहा है जिसमें बच्चे अच्छी प्रतिक्रिया कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं. तो हाँ जी, स्कॉलर जी. स्प्राइट के जरिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को थ्योरिकल पे बर्डन डालने की बजाय प्रैक्टिकल पर भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए? ये सिंस द फर्स्ट डे आप यहाँ देखेंगे मैम, जैसे हम किड्स प्राइज से स्टार्ट करते हैं टिल 12th क्लास, हमारी जो लर्निंग है स्कॉलर स्प्राइट में मैम थोड़ी डिफरेंट है. वी आर लेस ऑफ बुकिश नॉलेज एंड मोर ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड. तो हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को, आप देखेंगे प्रैक्टिकली यू हैड सीन बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, अदर लैब्स आर देयर. सो इन एडिशन टू थ्योरी प्रैक्टिकली बच्चों को कराते हैं एंड ऑन द लॉन्गर टर्म इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि वो एक स्किल सीखते हैं इन एवरी फील्ड. और प्रैक्टिकली जब करते हैं तो बच्चों को रिटेन भी ज़्यादा होता है. दैट्स वाई द रिजल्ट लाइक इन यू कैन से IIT, GE एंड अदर फील्ड्स ऑल्सो स्टूडेंट आर सिक्योरिंग वेरी गुड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल नॉलेज. इस एक्सपीरियंस को लेकर कोई मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स को तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह से बेटा बहुत फोकस्ड होके काम करते रहिए. कहीं गाइडेंस चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर. एंड आई कैन से दैट किड्स आर नॉट किड्स, दे आर टीचर्स समवेयर, दे टीचर्स अस मैनी थिंग्स. मेरा नाम अवधेश कुमार सक्सेना है. सर आज जो आज फंक्शन है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज क्या फंक्शन था? आज 2 प्रोग्राम थे. पहला था PTM, रिजल्ट डिक्लेरेशन और प्री मिड टेस्ट. जो बच्चों के प्री मिड होते हैं, ये प्री मिड टर्म CBSE ने दिया है, फॉर्मेटिव होता है. तो उसको जब रिजल्ट होता है, एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाती है. और ये भी बात करते हैं कि भाई हम इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कमी रह गई है और कैसे बढ़िया बना सकते हैं. तो एक ये प्रोग्राम था, रिजल्ट डिक्लेरेशन प्लस डिस्कशन. और इसमें हम दूसरा काम भी साथ में लेके चलते हैं कि बच्चों पेरेंट्स के साथ हम बच्चों की जो आंसर शीट्स होती है ड्यूली चेक्ड, वो भी दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स को ये रहे, पता चलता है कि मेरे बच्चे ने आंसर शीट्स में मिस्टेक कहाँ की है, सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. दूसरा प्रोग्राम था हमारा साइंस एग्जीबिशन, जिसे हमने एडू एक्सपो का नाम दिया था. और एक्चुअली में चाहे साइंस हो या कुछ भी हो, और आर पार्ट ऑफ एजुकेशन, सो इट वाज एडू एक्सपो. इसमें हमारे छोटे बच्चे जो थे अप टू क्लास 10th ओनली दे पार्टिसिपेटेड. 11th एंड 12th को हमने, क्योंकि ये थोड़ा सा मिडिल लेवल तक हमने किया था, लिमिटेड किया था. 11th एंड 12th को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था इसमें. और उन्होंने अपनी मर्जी से एज पार्ट ऑफ हॉलीडे होमवर्क प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बाद में उनको और रिफ़ाइन किया. एट द लास्ट स्टेज टीचर्स ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा दिया या उसको रिफ़ाइन करा दिया था. ये चार्ट्स वगैरह जो आपने देखे थे, आपने नोट किए होंगे, देखे होंगे कितने अच्छे अच्छे चार्ट बनाए थे. ऑल वर प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन. एंड हमारे जो मैनेजमेंट के लोग थे, बहुत से पेरेंट्स थे, दे वर आस्किंग मैनी क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट. और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि एक एक बच्चा उस प्रोजेक्ट की एक डेप्थ, चाहे वो थ्योरी ही क्यों ना हो, उसको बारे में बताने में वो सक्षम था. इसमें एक और सेक्शन था, आपने देखा होगा जब इधर से जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में था, और वो था कुकिंग सेक्शन. हमारे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट होता है एंड SUPW का पार्ट होता है, जिसमें बच्चे कुकिंग सीखते हैं. बहुत सी कुकिंग ऐसी होती है जैसे हम कहते हैं कि कुक विदाउट फायर, वो भी था. और डिफरेंट डिशेस भी बनाते हैं. कुछ बहुत सारी डिशेस तो ऐसी थी जो हेल्दी थी, मैक्सिमम तो ऐसी थी. एंड आपने शायद नोट किया होगा कि किस तरह से बच्चों से लेकर टीचर्स और टीचर से लेकर पेरेंट्स एक्साइटेड थे, टू मच एक्साइटेड थे. हमने आप समझिए जब टाइम हो गया तो ज़बरदस्ती इसको वाइंड अप कराया.
क्योंकि अल्टीमेटली टाइम को तो मेंटेन करना ही करना है, बट एवरीबडी वाज एक्साइटेड टू दिस सेक्शन। एंड एक और सेक्शन था उसके साथ लगा हुआ जो आर्ट एंड क्राफ्ट का था, जो हमारे स्कूल के बच्चों ने स्कूल के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैशन स्टडीज सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह सीखते हैं, तो उसमें उन्होंने खुद बनाए थे, बैग्स बनाए थे, कुछ और भी चीज़ें बनाई थी, वैक्स की उन्होंने कैंडल्स बनाई थी डिफरेंट साइज़ की वो थी। और एक और चीज़ हमने ऐड की थी, वो था बुक फेयर। आई थिंक आपने वो भी देखा होगा, बुक फेयर भी था। तो वी ट्राई टू कवर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एज पार्ट ऑफ एजुकेशन। सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मोटिवेशन उन्होंने इस प्रोजेक्ट वर्क में दिखाया, और डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट वर्क था या जो कि वो लर्न कर रहे थे थ्रू एक्सपीरियंस जो उन्होंने लर्न किया, और उसमें जो उन्होंने मोटिवेशन दिखाया, जो कोलैबोरेटिव वर्किंग दिखाई, जो टीम वर्क दिखाया था, दैट वाज अमेजिंग। और आई वुड से कि इसमें ऐसे बहुत से बच्चे थे जो अदरवाइज़ एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम में, लेकिन वही बच्चे प्रोजेक्ट्स में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे थे, जो उन्होंने सिंसियरिटी दिखाई थी, दिस वाज अनप्रेडिक्टेबल बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। उसकी मतलब आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई वट एवर आई ऑब्जर्व्ड।